डॉक्टर जितेंद्र जी से हाथ जोड़ के बेनती करूंगा, आपको युग पुरुष कहा जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने बड़े अच्छे काम किए, मैं उस पर दो राय नहीं कहूंगा, कोई सियासत की बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और जो शासक होता है, जो राजा होता है, कि उसको अपनी जनता के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी जनता में लोग सुखी हैं या दुखी हैं। मैं डॉक्टर साहब से अपील करूंगा, डॉक्टर साहब एक दौरा आप यहाँ पे करके देखो, अगर आपकी आंखों में आंसू ना आ गए तब आप कहना। एक मकान आंदे रिश्वतखोरी 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 गृह डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, गृह डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, गरीबों को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, रिश्वतखोर मुर्दाबाद, रिश्वतखोर मुर्दाबाद। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਲਗਾਉਣੀ, ਚਾਬੀ ਲਗਾਉਣੀ ਦੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਚਾਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਨਕਲੀ ਚਾਬੀ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ हेलो हेलो सारे तो आने पैना इधर बोल रहे भी गड्डी तदे चलनी, तुम आओगे थे गड्डी चाबी काट ली उन्होंने, बंद करो गड्डियां, कोई काम को नहीं करना। ਜਿੱਧਰੋਂ ਰੋਡ ਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੱਲ लद्दी कर लो, ਸਿੱਧੂ ਕਰ ले गल कर लो। लीगल प्रोसेस नहीं, और लोगों की जमीनों में आपने वो फिल्टर डालना शुरू कर दिया। बिल्कुल ये सर पब्लिक शाही है या ताना चाहिए, ये बताइए आप। नहीं भिजवाई की बात नहीं है, फिर आरटीआई से लेंगे जवाब। देखो फोन करता है इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल पर पता भी नहीं, 4 बार मैच हुई है उधर रोड ਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। रोड छड़ी तो लिंक रोड ਔਰ 4 ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਕਿੱਥੇ ਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਹ ਕੋਲ 2 ਗੁਣਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਉਈ ਆਈ ਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੋਹੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਹੇ ਦਾ ਘਰ ਪੜਵਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਹੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਧਰੇ ਪੈਰ ਸੁੱਟਾ ਲੋਕੀ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਮੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਡ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲੀਟੀਅਰ ਸੂਟ ਚ ਨਾ ਸੂਟ ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸਾਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਥੇ ਨਾ ਆਖਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੱਥੇ ਨੰਦੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਨਸੀਏ ਆਪਸ ਨਸੀਏ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਸ ਰੋਡ ਇੱਧਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, मेन रोड होना चाहिए, मेन ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। बस लिंक रोड है, पिंड दा रोड ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਬਣ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਕਨਾਲੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਬੁੱਟੇ ਪੁੱਟੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣਾ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਾ ਦੇਣੇ। ਕੌਣ ਸੁੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਫਾਲੇ ਸੁੱਟਾ ਕਰਦੇ, तो अगला पूछा नहीं ने ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਥੋੜੀ ਆ ਦੇ। ਕਣਕ ਰਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕਣਕ ਰਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੁੱਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਆ ਦੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਥੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛਪੀ ਇਹਦੇ ਜੀ, ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ? ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਨੇ ਲੈ ਦੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਮਲੀ ਲੈ ਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 80 ਫੁੱਟ ਦੱਸਾ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਦੂਰ ਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲਾਏ ਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਨੇ ਰੋਡ ਇੱਧਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਸ ਹਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਊਗਾ ਬਣੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੋਡ ਉਧਰ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਡ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਵਾਈ ਦੀਆਂ, ਕਿਆ ਰੁਕਵਾਈ ਦੀਆਂ? रोड
रोड वास्ते ना रोड जेड़ा हाईवे रोड आ उधर ए जानी बुझ के इधर गड्ढा दे क्योंकि ये रोड ही नहीं है गलियां साढ़े चलने वास्ते अज अगर ये गलियां साढ़े चलने वास्ते अज हाईवे ले बनान ये चलने आह्लियां गलियां च हाईवे बनियां ते फिर असें लोकें कुद्धर जाना फिर जेह्ड़े साढ़े जूड़ पुट्टी पुट्टी साढ़े मां प्यो ने बनाए जेह्ड़ी जमीन बनाई अज जेह्ड़ी 2-2 खेतर सारी लेइयै जा दे ओह् भी इधर रोड है गै नहीं अगर हूं 10 दिंदे इधर रोड ही नहीं हा जबरदस्ती रोड निकला था इधरों जिधरों डिफेंस रोड है उधरों कड्ढो असें रोड नहीं देना क्या उन्हें तुहानू सुनाया मरी जाना इत्थे इंदे सिर ग्रेफा ने सिर जेह्ड़ी मरी जाना क्या इन्हें तुहानू सुनाया तू सड़क कड्ढनी है नहीं बोलिया ने साढ़े सामने इन्हें मरीडियल भी इधर सुट्टिया है पुछया इन्हें बोलिया सानू बोला गेदा इधर सुट्टना है सुट्टना साडा काम है असें नहीं रोकना असें सवेरे दे इधर खड़े होए नहीं सुट्टना साडे नहीं जबरदस्ती करा दियो अगर वो आंदे न ग्रेफा वाले आंदे वो बोलते क्या करगे तुस असें ते कड्ढना अगर वो पुलिस वाला है उन्हें बोलिया इनका काम है तो असीं इन्हें रोकी नहीं सकते फिर अहां कोई कुछ मोर्चा वाला सारा हल करो जेड़ा पुराना रोड है कुछ मोर्चा है साडी कुदर सुनानी है उन्हें जेड़े लोकें बोल तू कैसे बोलना तो जानी जिन्नी मर्जी बोलो जेड़ा काम होना होइए रहना ते अफसर कन्नै कोई गल नहीं होंदी नहीं वो बोलदे बनना इधर सानू इधर का बनना ते जो मर्जी करो ते थोड़ी जनानियां कन्नै साडी कोई गल नहीं है फिर इंदी कोदे कन्नै गल है साडी कौन सुननी है साडी जनता दी कौन सुननी है तुस के चाहंदे हो रोड नहीं इधर नहीं बना जिधर डिफेंस रोड है उधर बनाओ इधर रोड असें नहीं चाहिए ते नहीं यहाँ बना देना असें ग्रेफा ने सिर जड़िया मारना इधर रोड ही नहीं है 3 साल हुई सरबा लगता है लेकिन उधर नहीं जाते इधर आइए बोलते इयो बना रिश्वत खा 2 साल पहले से सर्वे हो रहा था ऊपर एक्चुअली जो डिफेंस रोड है वो राजबाग से हरिया चक रोड है सीधी जो रोड इस्तेमाल हो रही है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये तो एक मोहल्ले की गली है छोटी सी गली है और यहाँ जितने भी घर हैं बेचारे और सारे जिम्मेदार हैं एक भी घर जो है बीच में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है वो रोड वहाँ से जा रही थी सीधी लेकिन कुछ इन लोगों का कहना है कि कुछ गिरफ्त के लोगों ने इनसे रिश्वत लेके वो अभी बातें कर रहे हैं कि हम डेफर्मेशन का केस डालेंगे हम मानहानि का केस डालेंगे देखिए इतने लोगों को उजाड़ कर क्या विस्तारीकरण किया जा रहा है मैं टेक्निकल बात आपको बाद में बताऊंगा पहले मैं वो बात करता हूँ जिस बात के लिए हम यहाँ पे आए हैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट ये लोग रो रहे हैं ये औरतें गाँव में देखिए सप्ताह बैठा हुआ है एक धार्मिक एंगल के साथ आप देखिए सप्ताह बैठा हुआ है सभी लोग अपने घर माल मवेशी को पठा चारा डाल के जब वहाँ माता के भजन गाने गए पीछे से चोरी इन्होंने ये क्या किया और यहाँ पे इन्होंने ये फेंकना शुरू कर दिया ये बेचारे इनके छोटे छोटे बच्चे घर थे वो भागते हुए गए उन्होंने बताया कि हमारी जगह पे कोई कब्जा कर रहा है जब इन्होंने देखा कि यहाँ गिरफ्त के बड़े बड़े टिप्पर जो 4 सैकड़ा माल एक साथ लेके आते हैं और उन लोगों ने वो गिराना शुरू कर दिया जिसकी जमीन है उसको पता ही नहीं आप देख सकते हो जमीन में कनक इन्होंने बीजी हुई है और कनक के ऊपर ही पत्थर फेंकने शुरू कर दिए मतलब ये लोकशाही तो ना हुई ये तो तानाशाही हुई ना अब मैं आपको टेक्निकल बात बताता हूँ टेक्निकल बात ये है आप नोटिफिकेशन देखिए वो जो वहां से डिफेंस रोड है उस रोड का विस्तारीकरण का वो है उसको एक्सटेंड करने का जो टेंडर है ना कि नया रोड बनाने का ये तो पूरी तरह से नया रोड हो गया आएंगे कोई बात नहीं हमें आरटीआई का गवर्नमेंट ने एक मार्ग दिया है एक साधन दिया है एक हमारे पास रास्ता है हम आरटीआई से पता लगा रहे हैं और जो हमने सर्वा किया हमने जो डॉक्यूमेंट्री तैयार किया उसमें हमने देखा है कि अगर वहाँ रोड बनती है तो मेरे ख्याल से 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बचत होगी गवर्नमेंट की एक बात और लोग भी कम उजड़ेंगे और जितनी जगह जाएगी मैक्सिमम सरकार जगह है और यहाँ जितनी जगह मालकी जगह है और जिसका घर जा रहा है उसकी जगह भी जा रही जगह कितनी है किसी के पास 3 कनाल है किसी के पास 4 कनाल है और ये जो औरतें बेचारी खड़ी हैं इनका पहरावा इनका आप सिस्टम देखो क्या है एक गाय रखी है इन्होंने 2 कनाल जगह में घास फूस उगा के और दूध का काम करके अपने बच्चे पाल रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो देखिए सरकार का काम होता है लोगों को बसाना बल्कि लोगों को उजाड़ना नहीं लेकिन मैं यहाँ जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कुछ यहाँ के जो माफिया लोग हैं लैंड माफिया हैं लैंड ग्रैबर हैं उन लोगों ने क्या किया है कि गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह उनका जो मैं कह रहा हूँ आई वाश किया गया है और उनको एक अलग झूठे किस्म का इनको सर्वे कराकर और गिरफ्त ने पूरा साथ दिया उसमें आप जाके देखो जिस तरह इन्होंने रोड को घुमाया है पिक एंड चूज की बात की है जहां दिल किया उसको बचा दिया जहां किसी के साथ है उसको मार दिया किसी गरीब की 4 कनाल जगह एक साइड ही आ गई और किसी की इंच भी नहीं आई
किसी का मकान भी आ गया और किसी का इंडस्ट्रियल एरिया जो जितना भी लोगों कमर्शियल एरिया वो बचा लिया गया। कहाँ का इंसाफ मुझे ये बताओ। अगर हमारे दिलों में दर्द है, हम तो साधारण से लोग हैं, क्योंकि आज इनके साथ हुआ कल हमारे साथ भी हो सकता है। एज ए समाज सेवक हम यहाँ पे आए हुए हैं और जो सरकार है जिसका काम है, मैं खास करके डॉक्टर जितेंद्र जी से हाथ जोड़ के बेनती करूंगा, आपको युग पुरुष कहा जा रहा है यहाँ पे, आप लोगों ने बड़े अच्छे काम किए, मैं उस पर दो राय नहीं कहूँगा, कोई सियासत की बात नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और जो शासक होता है, जो राजा होता है, कि उसको अपनी जनता के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी जनता में लोग सुखी हैं या दुखी हैं। मैं डॉक्टर साहब से अपील करूंगा, डॉक्टर साहब एक दौरा आप यहाँ पे करके देखो, अगर आपकी आंखों में आंसू ना आ गए तब आप कहना। एक एक गाय है, वो भी देसी गाय हैं, 2-2 किलो दूध बेचकर ये बेचारे अपना गुजारा करते हैं। ये क्या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या शिक्षित करेंगे, क्या ये मुख्यधारा के साथ चलेंगे? ये लोग तो पहले ही 100 साल पीछे हैं। ये लोग कब हमसे जाके मुख्यधारा के साथ आप इन लोगों को जोड़ोगे? आप जल शक्ति मिशन चला रहे हो, आप तमाम कोशिशें कर रहे हो कि गांव को डेवलप करने की, लेकिन ये जो आपकी सड़क आ रही है, यहाँ लगभग 200 घर आप तबाह कर दोगे। 200 घर की नस्लें, पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। और कितने? 2-4 घरों के लिए। और वो लोग कौन हैं? वो लोग वही लोग हैं जो लैंड माफिया हैं, और उन लोगों के पास इतनी, मैं समझता हूँ कि पावर है कि वो किसी को भी खरीद सकते हैं। देखिए, कभी भी देश में इतनी असमानता नहीं होनी चाहिए। हालात कई दिन हुए बेचारे, इनका खाना खाने का दिल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि दिल टूटा हुआ है। डॉक्टर साहब, एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, मैं सबसे अपील करता हूँ, एक बार यहाँ पे आके इन लोगों की बात सुनी जाए, ग्राउंड पर देखा जाए क्या हो रहा है। आंखें बंद कर उन लोगों पर विश्वास ना किया जाए जो गलत तरीके के साथ लैंड माफिया और यहाँ इन लोगों, गरीब लोगों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। मुझे विश्वास है कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार इन लोगों का साथ देगी। ये लोग वोट डालते हैं, ये लोग सरकार बनाते हैं, और जब इनकी आपको जरूरत थी, इन्होंने आपका साथ दिया। आज इनको आपकी जरूरत है, आप इनका साथ दें। जय हिंद, जय भारत।